Good morning, dear students. Welcome to the Let's Learn Economics with Abdul Hamid. Okay, today we will discuss in this video demand for and supply of foreign currency from the chapter foreign exchange rate. आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी क्या होता है या फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है उसका बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि फॉरेन एक्सचेंज रेट उस चैप्टर का एक क्या होता है यूनिट है। অসমীয়াত যদি কয় আজিৰ আমি কি কৰিম বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ যোগান আৰু চাহিদা কি সেই বিষয়ে কি কৰিম এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। ওকে, ফাৰ্ষ্ট ডিমান্ড ফৰ ফৰেন এক্সচেঞ্জ বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ চাহিদা। The demand for foreign exchange in the foreign exchange market comes from the following, मतलब foreign exchange, what are the sources of demand for foreign currency or foreign exchange, we will discuss them। मतलब डिमांड कैसे क्रिएट होता है या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज का ऊपर डिमांड कैसे क्रिएट होता है वो सब क्या करेंगे या सोर्स क्या है उस सब के बारे में क्या करेंगे इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला जो सोर्स है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी का वो इम्पोर्टर्स, आमदनीकारी होगा। Importers purchase goods and services. When they purchase goods and services, that means they purchase goods and services from outside of the country, so they need to pay foreign currencies. For example, suppose इंडिया का लोग बाहर से यूएस से क्या कर रहा है, अमेरिका से इंपोर्ट कर रहा है, तो अमेरिका से जब गुड्स परचेस करेंगे तो क्या करना होगा, हमारा देश का जो करेंसी है रुपीस वो तो अमेरिका वाले नहीं लेगा, तो जो अमेरिकन डॉलर होगा वो अमेरिका को देना होगा। तब क्या होगा, हमारा देश का जो इम्पोर्टर था वो लोग क्या डिमांड करेंगे, अमेरिकन डॉलर। सो इस तरह क्या हो सकते हैं, डिमांड फॉर अमेरिकन डॉलर क्रिएट हो सकता है। আমদানিকাৰীসকল যেতিয়া কি কৰাব, আমদানিকাৰীসকলে কি কৰে, বিদেশৰ পৰা দ্ৰব্যৰ সেৱা ক্ৰয় কৰে। যেতিয়া আমি বিদেশৰ পৰা দ্ৰব্যৰ সেৱা ক্ৰয় কৰিম তেতিয়া সেই দেশৰ যি দেশৰ পৰা ক্ৰয় কৰিম সেই দেশৰ মুদ্ৰাত কি কৰিব লাগিব, আমি পৰিশোধ কৰিব লাগিব, টকা পৰিশোধ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে কি আমি যেতিয়া সেই দেশৰ মুদ্ৰাত টকা পৰিশোধ কৰিব বিচাৰিম তেতিয়া ই কি কৰিব, সেই দেশৰ মুদ্ৰাৰ প্ৰতি কি কৰিব, আমাৰ চাহিদা সৃষ্টি কৰিব, যাৰ ফলত ই কি হ'ব, বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ চাহিদাৰ সৃষ্টি হ'ব। नेक्स्ट क्या है, सेंडिंग रिमिटेंसेस एब्रोड, विदेशলৈ সাহায্য প্ৰেৰণ। सपोज फॉरेन एक्सचेंज इज ऑल्सो डिमांडेड फॉर सेंडिंग रिमिटेंसेस। रिमिटेंसेस मतलब गिफ्ट्स एंड अदर ट्रांसफर इनकम, मतलब फिनेंशियल असिस्टेंस और फिनेंशियल हेल्प और सम काइंड ऑफ रिलीफ फंड और रिलीफ मेजर्स। सपोज क्या हो रहा है, अभी देखो जो पेंडेमिक है ये कोरोना काल में, तो बाहर देशों से बहुत सारा क्या होता है रिमिटेंसेस या हेल्प सपोज हम लोगों को मिला इंडिया को, या हम लोग बाहर देश से कोई अगर क्या करते हैं रिमिटेंसेस सेल्फ करते या हेल्प करते हैं, तो वो देश में जब तुम क्या करोगे, हेल्प करना चाहते हो, फिनेंशियल हेल्प या गिफ्ट देना चाहते हो, तब क्या करना होगा, जाके उस देश का करेंसी पे देना होगा। उस देश का करेंसी पे जब देना होगा तब क्या हो रहा है, उस देश का करेंसी तुम डिमांड कर रहे हो, मतलब डिमांड फॉर क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी हो रहा है। যেতিয়া আমি বিদেশলৈ সাহায্য প্ৰেৰণ কৰিম তেতিয়া সেই দেশৰ মুদ্ৰাত কি কৰিব লাগিব, সাহায্য প্ৰদান কৰিব লাগিব। তেতিয়া ই কি কৰিব, মুদ্ৰাৰ চাহিদা সৃষ্টি কৰিব, কাৰণ আমি সেই দেশৰ মুদ্ৰাতে সাহায্য দিব পাৰিম। নেক্সট ওৱান है পাৰ্চেজ অফ ফিনান্সিয়েল এছেটছ এব্ৰড, বিদেশত বিত্তীয় সম্পদৰ ক্ৰয়। ইফ সাপোজ ইণ্ডিয়ান পিপল পাৰ্চেজ দ্য ফিনান্সিয়েল এছেটছ ইন UK or in USA, then they have to pay in either in US dollar or in British pound, so they will demand it what, US dollar or British pound। so in this way demand for foreign currency, that is either British pound or US dollar will comes in India। so अगर सपोज क्या करते हैं हम लोग, और कोई सपोज क्या करते हैं बाहर देशों में जाके क्या परचेस करते, फिनेंशियल एसेट्स परचेस करते बाहर में, तब जिस देश में हम लोग परचेस करेंगे उसी देश का करेंसी भी पे भी करना होगा। तब क्या होगा, उस देश का करेंसी हम लोग डिमांड करेंगे, मतलब डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी क्या होगा, क्रिएट होगा। যে আমি যেতিয়া বাহিৰলৈ বিত্তীয় সম্পদৰ ক্ৰয় কৰিম, সাপোজ আমি কি কৰিব বিচাৰোঁ, বাহিৰৰ যিকোনো দেশৰ পৰা সম্পদৰ বিত্তীয় সম্পদৰ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰোঁ, তেনে ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, বিত্তীয় সম্পদৰ যেতিয়া তুমি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিবা তেতিয়া যি দেশৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিবা সেই দেশৰ মুদ্ৰাৰ বিনিময়ত তুমি কি কৰিব লাগিব, টকা পৰিশোধ কৰিব লাগিব। তেতিয়া কি হ'ব, বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ চাহিদা সৃষ্টি হ'ব। নেক্সট ওৱান ইজ স্পেকুলেটৰ্ছ, অসমীয়াত কয় ফটকা ব্যৱসায়ীসকল। स्पेकुलेटर्स मतलब जो क्या कर, द पर्सन हु बाय एंड सेल फॉरेन करेंसी फॉर एन इकोनॉमिक कंसिडरेशन सच एज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देयर कंसिडरेशन इज प्योरली सो। फॉर एग्जांपल इफ पीपल, स्पेकुलेटर्स बेसिकली क्या होता है, द पर्सन हु बाय सेल फॉरेन एक्सचेंज
or goods and services, either basically related to the imports and exports. If suppose, for example, if there is speculation that, suppose Indian people speculated that in the near future the price of US dollar will increase, so everyone will want to convert their Indian rupees to US dollar. So in that case, what happens? Demand for US dollar will increase, और it will create the demand for US dollar. सपोज स्पेकुलेटर से फ्यूचर में क्या होगा, US डॉलर का प्राइस बढ़ जाएगा, तो सब क्या करेंगे, उसी देश का करेंसी को हम डिमांड करना चाहते हैं. सो इसी तरह डिमांड भी क्रिएट होगा फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में. फटका ব্যৱসায়ীসকল সাপোজ অনুমান কৰিল যে ভৱিষ্যতে কি হ'ব, আমেৰিকান ডলাৰৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈ যাব. যেতিয়া আমেৰিকান ডলাৰৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈ যাব, তেতিয়া আমি আমেৰিকান ডলাৰ কি কৰিম, চাহিদা কৰিম. গতিকে যিয়ে কি কৰিব, বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ চাহিদাৰ কি কৰিল, সৃষ্টি কৰিল. नेक्स्ट वन इज़ फॉर मेकिंग पेमेंट्स ऑफ फॉरेन डेप्ट, वैदेशिक ऋण परिशोध. सपोज क्या कर रहे हैं, सपोज इंडिया ड्यूरिंग इमरजेंसी बा कोई फिनेंशियल क्राइसिस पे यूएसए से या यूके से कुछ क्या ले रहा है, लोन लिया है. तो उस लोन जब रीपे करना होगा, पेमेंट जब करना होगा, तब क्या होगा, या उस US डॉलर में करना होगा. सो तब हम लोग क्या करेंगे, US डॉलर डिमांड करेंगे. तो उसी तरह क्या हो सकता है, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, दैट इज़ डिमांड फॉर US डॉलर क्रिएट हो सकते हैं इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में. अभी हम लोग पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या है, क्या है. डिमांड तो देखा जो कैसे डिमांड क्रिएट होता है फॉरेन एक्सचेंज का. अभी देखेंगे सप्लाई कैसे क्रिएट होता है. फर्स्ट वन इज़ एक्सपोर्टर्स, रफ्तानीकारी हो गल. इफ़ वी एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज टू आउटसाइड ऑफ द कंट्री, इफ सपोज वी एक्सपोर्टेड आवर गुड्स टू USA, then we will receive what, we will receive some US dollar from American people, because if we export it to USA, then they will pay their money in terms of what, in terms of US dollar. सो लोग क्या करेंगे, सपोज़ हम लोग बाहर देश में कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट करने से क्या होगा, बाहर देशों से क्या होगा, जो फॉरेन करेंसी है वो फ्लो होगा हमारा देश में. तो इसी तरह क्या हो सकता है, सप्लाई हो जाएगा मार्केट में, हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में. ৰপ্তানিকাৰীসকল, যেতিয়া আমি কোনো এটা দ্ৰব্য কি কৰিম, যদি বিদেশলৈ বিক্ৰী কৰোঁ, বিক্ৰী কৰাৰ পিছত সেইটো কি হ'ব, যেতিয়া আমি দ্ৰব্য বিক্ৰী কৰিম, সাপোজ বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰোঁ, তেনে সেই ৰপ্তানিকাৰীসকলে কি কৰিব, আমাক সেই দেশৰ মুদ্ৰা দিব. গতিকে তেতিয়া আমাৰ দেশত কি হ'ব, বৈদেশিক মুদ্ৰা যোগানৰ সৃষ্টি হৈ যাব. নেক্সট ওয়ান ইজ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी विनियोग. इफ फॉरेनर्स डायरेक्टली इन्वेस्टेड इन आवर कंट्री लाइक FDI, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है, FDI और FPI दोनों से क्या हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई क्रिएट हो सकता है इकोनॉमी में. सपोज फॉरेनर्स डायरेक्टली इन्वेस्ट है, हमारा देश पे क्या हो रहा है, फॉरेनर्स डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, अपना करेंसी तो लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्ट करने से सपोज अपना करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे या अपना करेंसी हमारा देश में सेल करके कन्वर्ट कर लेंगे. सो उसी तरह क्या हो सकते हैं, दोनों प्रोसेस में भी फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई हो सकता है इकोनॉमी में. বিদেশী বিনিয়োগ, যদি বিদেশীসকলে আমাৰ দেশত প্ৰত্যক্ষভাৱে বিনিয়োগ কৰে, যেনেকৈ FDI আছে প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ, বা FPI যে বৈদেশিক সম্পদৰ ওপৰত বিনিয়োগ, বিদেশীসকলে যদি আমাৰ দেশত কৰে, তেনেহ'লে আমাৰ দেশত কি হ'ব, বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ যোগানৰ কি হ'ব, সৃষ্টি হ'ব. নেক্সট ওৱান, ডাইৰেক্ট পাৰ্চেজেছ বাই নন ৰেচিডেণ্টছ, অনাবাসিন্দাসকলৰ প্ৰত্যক্ষই. The supply of foreign exchange can also comes from the non-residents who make direct purchase in the domestic market. इसका एक एग्जाम्पल दिया है. सपोज एग्जाम्पल क्या है, when a foreigner wants to stay at a hotel in India, then he needs to sell his foreign currency at a bank and buy Indian rupees for the payment of the hotel bill. सपोज क्या हो रहा है, अमेरिकन लोग या टूरिस्ट क्या हो रहा है, हमारा देश पे आते, तो टूरिस्ट पे आते हैं, जब होटल पे रहते हैं, तो होटल बिल पे करने के लिए उन लोगों को क्या होगा, वो देश का जो US डॉलर लेके आते हैं वो सेल करना होगा, हमारा बैंक में सेल करके उसको इंडियन रुपीस लेना होगा होटल का बिल देने के लिए. तो जब वो सेल करेंगे हमारा देश में, तब क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज का जो सप्लाई है वो क्रिएट होगा. অনাবাসিন্দাসকলৰ প্ৰত্যক্ষ ক্ৰয়ে কি কৰিব, বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ যোগানৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে. উদাহৰণস্বৰূপে ধৰা হ'ল, বাহিৰৰ দেশৰ মানুহ এজনে কি কৰিছে, আমাৰ দেশত আহিছে ঘূৰিবলৈ, ভ্ৰমণ কৰিবলৈ, আমাৰ দেশৰ হোটেলত থাকিছে. তেওঁলোকে যেতিয়া হোটেলৰ বিল পৰিশোধ কৰিব, বিভিন্ন ধৰণৰ কিনা কৰিব, তেতিয়া তেওঁ কি কৰিব লাগিব, তেওঁৰ দেশৰ যিটো মুদ্ৰা সেইটো আমাৰ দেশৰ বেংকত যাই বিক্ৰী কৰি আমাৰ দেশৰ টকা, ভাৰতীয় টকা কি কৰিব ল'ব লাগিব. গতিকে তেওঁৰ দেশৰ পৰা লৈ অহা টকাটো কি কৰিল, আমাৰ বৈদেশিক মুদ্ৰা যোগানৰ সৃষ্টি কৰিল. और एक दूसरा हो सकता है, स्पेकुलेटर्स भी हो सकते हैं इस पर. फटका सपोज इफ देयर इज ए स्पेकुलेशन दैट
इन द नियर फ्यूचर क्या होता है, यूएस डॉलर का प्राइस कम हो जाएगा। तो सब लोग क्या करेंगे, जितना मतलब यूएस डॉलर था वो लोग क्या करेंगे, यूएस डॉलर को सेल कर देंगे। सेल करने से तब हमारा देश में क्या होगा, यूएस डॉलर का जो करेंसी है उस करेंसी यूएस डॉलर उसका सप्लाई बढ़ जाएगा। जैसे क्या होता है, स्पेकुलेटर सेल फॉरेन करेंसी इन द एक्सपेक्टेशन दैट रिड्यूसिंग लॉसेस। फ्यूचर में सपोज लॉस होने का चांसेस है, जे अभी गेन हो रहा है बट फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज, सपोज यूएस डॉलर या ब्रिटिश पाउंड में। तब वो लोग क्या करेंगे, उसको सेल करके उसको सेल करेगा और सेल करके क्या इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर लेगा। सो जब वो लोग सेल करेगा यूएस डॉलर या ब्रिटिश पाउंड, तो हमारा देश में जब सेल करेगा तो क्या होगा, इसमें फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई होगा हमारा इकोनॉमी में। सो इसी तरह क्या हो सकते हैं, डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी हो सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। ओके, सो आज का जो टॉपिक था उस टॉपिक से क्या हो सकते हैं, फ्रॉम टुडेज टॉपिक 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सप्लेन द मेन सोर्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, বৈদেশিক मुद्रा যোগানোর উৎসসমূহ, और एक्सप्लेन द मेन सोर्सेस ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। ये 2 क्वेश्चन कभी कभी फाइनल एग्जाम में आ सकता है। ओके, थैंक यू। आई होप सबका समझ में आ रहा है। ओके।